Hello everyone, welcome to our YouTube channel Matherific. Myself Priyanka and today's topic is AIDS. AIDS stands for the Acquired Immunodeficiency Syndrome. As the name suggests, immunodeficiency means AIDS generally affect our immune system or suppress our immune response. Syndrome generally meaning to a group of disease or group of symptoms in which a person acquire bacterial, viral, protist or fungi disease. The AIDS is caused by the HIV virus, which belong to the class of retrovirus. Retrovirus are the viruses which contain the genetic material RNA. Here, two types of HIV are there: HIV-1 and HIV-2. HIV-1 are present in US, Australia, Europe, and HIV-2 are in India and Africa. The HIV-1 is more infectious as compared to HIV-2. Then the World AIDS Day. World AIDS Day is celebrated on the 1 December. If we are talking about its transmission, then it's generally transmitted from the infected needles, or the person who are drug addicted share the infected needles. So the AIDS is transmitted from the infected needle. Then through the blood transfusion. Third is through the multiple sexual partners. The individuals or the persons who have multiple sexual partners generally acquire AIDS, and from the mother to the fetus also. The mother to the fetus is transmitted from the two ways, that is placenta or the breast milk. Placenta to the fetus or through the breast milk. Then if we are talking about the HIV, it belongs to the HIV retrovirus class, and we are already studying about the HIV-1 and HIV-2. Now we are discussing about the structure of HIV virus, that is immunodeficiency virus. It contains two single-stranded RNA along with three enzymes. RT, that is reverse transcriptase enzyme, protease enzyme, and integrase enzyme. Reverse transcriptase enzyme help in the process of reverse transcription from making RNA from DNA. The process of making of DNA from RNA is the reverse transcription process. The protease enzyme help in to make the viral protein, and the integrase enzyme help to integrate the viral DNA into the host DNA. Outside the genetic material, there is a protein layer which surrounds the genetic material is capsid. These capsids are made up of the protein, and these smaller subunits is known as the capsomers. Outside the capsid, there is a nuclear envelope which surrounds the whole genetic material. The nuclear envelope contains the spikes which help in the attachment to the host cells, along with the glycoprotein 120 and glycoprotein 40. These glycoprotein help to identify the receptor of CD4 या फिर CXCR that is present on the macrophage, nerve cells or T helper cells generally. If we're looking at the process, how AIDS is transferred or how AIDS is spread inside our body, then this is the HIV virus with glycoprotein 120. This glycoprotein 120 identify the CD4 receptor present on the macrophage. This is the macrophage cells. The HIV virus release its content like single-stranded RNA along with three enzymes: protease, integrase, and RNA transcriptase enzyme. RNA, that is a reverse transcriptase enzyme. This RNA, from the using of this RNA, ये वायरस क्या करेगा, अपना DNA बनाएगा. RNA से DNA बना रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर रहा है. किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. यहाँ पे उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अपना डीएनए बना दिया. अब क्या करेगा, हमारा इंटीग्रेज एंजाइम आएगा. वो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है. अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए और इसको हमारा इनकॉर्पोरेट कर देता है. कहाँ पे करेगा हमारा, ये है हमारा होस्ट का डीएनए, मतलब हमारा डीएनए इसमें इनकॉर्पोरेट, इसमें मिला देगा ये वाला डीएनए और हमारे सेल्स को
डायरेक्ट करेगा, कमांड देगा कि मेरे लिए और ज्यादा आरएनए बनाओ और ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाओ। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगी हमारी बॉडी, और यहाँ पे दो तरह का आरएनए बनता है, एक होता है जीनोमिक आरएनए, एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए। जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वही हमारा कमांड देता है हमारे सेल को और ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाने के लिए, और इसमें हमारा एंजाइम हेल्प करेगा, प्रोटीएज एंजाइम। थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम मोर वायरल प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड, और ये वायरल प्रोटीन है हमारा किसकी, बडिंग प्रोसेस की हेल्प से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल के हमारा इन्फेक्ट करती है फर्दर टी हेल्पर सेल्स को। हम एक बार फिर से रिव्यू लेते हैं। हमारा जो HIV वायरस है वो क्या करेगा, हमारा जनरली एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर आएगा, अपना कंटेंट है वो रिलीज कर देगा। क्या क्या कंटेंट है इसका, हमारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, प्लस में हमारे 3 एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब हमारा डीएनए, अपना डीएनए बना लेगा। अब जो ये वायरल डीएनए है इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ इंटीग्रेज, और ये इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, हमारे होस्ट, हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देगा, डाल देगा। अब हमारे सेल को कमांड देगा कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाओ। तो हमारी सेल क्या करती है, डीएनए से आरएनए बना रही है तो और ज्यादा आरएनए बनेंगे, और हमारे दो तरह के आरएनए बनते हैं यहाँ पे, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है जीनोमिक आरएनए। जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वही हमारे सेल को कमांड देता है कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाओ, और यहाँ पे हमारा प्रोटीएज एंजाइम है वो हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाने में, और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनती है, वायरस है वो जल्दी से जल्दी रेप्लिकेट करता है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग वो क्या करता है, एग्जिट कर जाता है हमारे सेल्स को से, और फिर फर्दर टी हेल्पर सेल्स को वहां पे इफेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ये हमारा डिस्ट्रक्ट करता है टी हेल्पर सेल्स को, ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस होने लगता है, मतलब जो आदमी है, जो ह्यूमंस है वो ज्यादा इन्फेक्शंस को के लिए रिलायबल हो जाते हैं। बैक्टीरिया डिजीज लग जाती है उन्हें, वायरस डिजीज लग जाती है, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ डिजीज है उन्हें आसानी से लग जाती है। इसीलिए जो एड्स का नाम भी दिया गया है इम्यूनोसप्रेसिव, एक्वायर्ड इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज। तो ये हमारी यहीं से नाम हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और उसको हमारा फैला रहा था HIV वायरस, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ हम इसके जो स्टेजेस हैं वो देखें तो इसमें हमारे 3 स्टेजेस थे, इन्वेजन, रेप्लिकेट और एग्जिट। इन्वेजन में कैसे है, वो जो होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, अपना कंटेंट है वो रिलीज कर रहा है। रेप्लिकेट के अंदर हमने देखा कि कैसे है वो अपना थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन वो कैसे कैसे अपने वायरल प्रोटीन बना रहा है, और एग्जिट में हमने देखा कि कैसे वो वायरल प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बनाकर वहां से सेल से एग्जिट कर रहा था थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये हमारे स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है, कैसे कैसे क्या हुआ। स्पाइक लोन विद ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफाई किए हमारे CD4 रिसेप्टर, वहां से क्या हुआ, जो वायरस था उसने अपना कंटेंट रिलीज कर दिया, रिलीज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्लस प्रोटीएज प्लस इंटीग्रेज। फिर क्या करेगा, अपना मेक डीएनए फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। देन जो ये वायरल डीएनए था ये इनकॉर्पोरेट कर देगा हमारे होस्ट के डीएनए के अंदर, इनकॉर्पोरेट वायरल डीएनए इनटू द होस्ट डीएनए, और डायरेक्ट या मैसेज देगा हमारे सेल्स को कि ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाई जाए। देन हमारे यहाँ पास 2 तरह का आरएनए बनेगा, एक होता है जीनोमिक आरएनए, दूसरा होता है हमारा एमआरएनए। जो एमआरएनए होगा वो हमारे होस्ट सेल को मैसेज देगा, कमांड देगा कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनाओ, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वायरल प्रोटीन बनती है, और बाद में क्या है वो वायरस रेप्लिकेट होके उस सेल से एग्जिट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, और वो फर्दर क्या करता है हमारे टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अगर हम स्टेजेस की बात करी जाए तो इसमें हमारी
मेनली 4 तरह की स्टेजेस आती है। सबसे पहले आती है हमारी एक्यूट और इनिशिएटिव स्टेज। इस स्टेज में जो इंसान को पता नहीं लगता कि उसे एड्स का इन्फेक्शन हो गया है, तो जनरली लो फीवर रहता है या फिर स्किन रैशेज होते हैं, ऐसे कोई इतना इन्फेक्शियस स्टेज नहीं होते, स्टार्टिंग स्टेज होती है। जो दूसरी स्टेज हम देखेंगे वो होती है हमारी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। इसमें एसिम्प्टोमेटिक जनरली वही कि कोई सिम्टम्स है वो जनरली अपीयर नहीं आ सकते हैं। हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वोलन, वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहां पे सूज जाते हैं वो। देन आती है हमारी एड्स रिलेटेड इशू। इसमें हमारा जैसे इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटीज होती हैं, हमारी इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज लग जाती है या फिर डायरिया हो जाता है। डायरिया हमारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार हमें वो डेथ भी कोज करता है। इसके बाद आती है फुल ब्लोन एड्स। यहाँ पे जो एड्स का इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बीमारियां लग जाती है, जैसे कि हमारे टाइफाइड है, निमोनिया है। इसमें हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी तरह का इन्फेक्शन है इजीली ह्यूमंस को लग जाता है। देन हम डिटेक्शन की बात करें कि कैसे हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो जनरली कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू एड्स को डिटेक्ट किया जाता है, या फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हमने बोला है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। इसकी हेल्प से हम एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमारा ब्लड लिया जाता है, प्लस स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं उनके साथ उनको ट्रीट कराया जाता है, मिलाया जाता है। देन हमारे स्पेशल एंजाइम से उनको डाला जाता है कि क्या एक्टिविटी हुई है क्या नहीं हुई है, और जब ये हमारा इन्फेक्टेड ब्लड प्लस एंटीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एंटीबॉडी बनाते हैं। इन्हीं एंटीबॉडी की हेल्प से पता लगाया जाता है कि वेदर अ पर्सन हैव एड्स और नॉट। देन हमारे कुछ अल्ट्रा सेंसिटिव HIV सेंसर्स होते हैं जो हमारे एड्स का पता लगाते हैं। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज होता है। देन हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो इन्फेक्शन स्टेज का हम पता लगाया जाता है तो हमें इमरजेंसी HIV पिल्स ली जाती है, वो 72 आवर्स के अंदर ही ली जाती है। 3 डेज मान लो किसी को पता लग गया, इनिशिएटिव स्टेज में ही पता लग गया कि भाई मुझे एड्स है, तो वो क्या करेगा, हमारे इमरजेंसी HIV पिल्स आती है। इस स्टेज में इन्फेक्शन बहुत कम होता है और इन पिल्स की हेल्प से उसको ट्रीट किया जा सकता है। देन हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या होते हैं हमारे, जनरली आप हार्ट से याद कर सकते हो। हार्ट होता है, हार्ट क्या होता है हमारा, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें हमारे बहुत सारे ड्रग्स का कंबाइंड फॉर्म होती है और वो ट्रीट की जाती है हमारी एड्स को क्योर करने के लिए। देन हमारे पास सर्टेन प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटीज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं। अगर प्रोटीज एंजाइम ही रुक जाएगा तो हमारी और वायरल प्रोटीन नहीं बनेगी, तो उसके लिए जनरली जो यूज किया जाता है वो है हमारा राइटोनाविर और डारोनाविर। ये हमारे ड्रग्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं एज अ प्रोटीन इनहिबिटर। देन है हमारे पास फ्यूजन इनहिबिटर, मीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 रिसेप्टर की बाइंडिंग को रोकते हैं, फ्यूजन इनहिबिटर्स होते हैं वो। उसमें है हमारे इफ्यूबिरिटाइड, ये हमारे सर्टेन फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं। देन हम बात करेंगे इंटीग्रेज इनहिबिटर्स की। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स वो जो हमारे इंटीग्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे राल्टोग्राविर है, वो हमारा मेन एग्जाम्पल है जो कि एक्ट करता है एज अ इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। सो ऑल दीज आर अबाउट एड्स। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।